देखा कैसे उल्लू बनाया बच्चे के पेरेंट्स ने। बोला क्या था कि उसमें है स्वीट, लेकिन पिलाया क्या? मेडिसिन। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इन टूडेज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2, where we are going to prove certain numbers are irrational numbers. What we are going to do here? We are going to use the method called as contradiction method. So चालू करेंगे, इधर देखो। Okay, so today we are going to start with our next exercise, exercise 1.2, which is entirely about proving some numbers are irrational numbers. So before starting the proofs of this or starting the exercise, let us understand what are irrational numbers. So irrational numbers are the numbers which cannot be written in A by B form. Okay, this you have done in your previous grade. Always they are something like root 2, root 3, root 5, root 7. In this type of form they will appear. So we have to prove this exercise. These numbers are irrational numbers. Okay, second thing that you should understand about these numbers are that to prove these numbers are irrational numbers, we have to use the method named as contradiction method, which we have seen in the beginning of this video, like that small clip we have seen. Same thing we must have done in many of our day to day time. Like किसी friend ने आपको बोला रहेगा कि ये particular जगह पे you get a good मिठाई, you go there, you eat that मिठाई and you feel like oh it is not that good, right? So क्या हो गया, आपका contradiction हो गया आपका assumption से. So same thing हमें करना है, हमें यूज करना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड टू प्रूव दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर. तो हम लोग चालू ही करेंगे कि लेट दिस नंबर बी रैशनल नंबर, और फिर कुछ जादू हो जाएगा और फिर एट द एंड हम लोग बोलेंगे अरे ये तो इरेशनल नंबर है. Okay, and third important thing that I want to tell you is you will get three types of questions to prove in this particular exercise. One is plain irrational number, one is a irrational number with some number lying outside, and you will get one irrational number plus or minus with some other number. Okay, so if you see the marking system of these three type of question, the first type of question you will always get for 3 marks, and these two types of questions you will get it for 2 marks. Okay, so you don't have to worry that much. You have only few questions in this exercise. So let us start this exercise. Okay, so now we will start with the first question of exercise 1.2, which says prove that root 5 is a irrational number. As I told you, we have to use here contradiction method. So first we will do the assumption that let root 5 be irrational number के साथ contradiction क्या है? Rational. root 5 be a rational number. ये assumption है. अगर ये rational number है, therefore root 5 can be expressed as what? A and B, A upon B, where A comma B are co-prime numbers. Any co-prime numbers. What are co-prime numbers? As I told you in my previous video, there is no common factor. That means no common factor between A and B. Okay. So now what I will do? Immediately I will square both the sides. So as soon as I square root 5 the whole square is equal to A by B the whole square. रूट के अंदर कोई भी स्क्वायरिंग होता है तो वो रूट चला जाएगा, आपके पास आएगा 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ये जो है ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1. इसी से हमें पता क्या चलेगा?
अगर ये 5 अगर इसके नीचे आ जाएगा तो a स्क्वायर जो है वो 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, करेक्ट? देयरफॉर वी कैन राइट दैट a square is divisible by 5. As a square is divisible by 5, a is also divisible by 5. अभी ये कैसे? इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। एक नंबर ले लिया जो कि स्क्वायर है, सपोज ले लिया मैंने 25। अगर वो 5 से डिविजिबल है तो आंसर 5 आता है। 25 का रूट निकालो जो कि आएगा 5, उसको भी 5 से डिवाइजेबल है तो वो भी आ जाएगा 1। तो ये मतलब है जो भी स्क्वायर है अगर वो डिविजिबल बाय कोई नंबर है तो उसका जो रूट है वो भी उससे डिविजिबल होगा, ठीक है? इसकी वजह से अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आपको लिखना ही है ये वाले प्रूफ में, ठीक है? तो ये हो गया। अगर a डिविजिबल बाय 5 है तो हम लोग लिख सकते a इज इक्वल टू 5 के, राइट? अगर a इज इक्वल टू 5 के लिखे, वापस हम लोग करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो जैसे मैंने इसको स्क्वायर किया ये आ गया मेरा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 k स्क्वायर। ये k क्या है? k इज कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, ओके? अभी मुझे पता है a स्क्वायर इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा मुझे? 5b स्क्वायर is equal to 25 k square. This I will write from equation 1. Okay. तो ये 5 25 से कटा, यहाँ पे आ गया 5, सो मेरा हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 k स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, करेक्ट? अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, as we have used it up also. b is also divisible by 5। तो अभी यहाँ पे देखो मुझे क्या मिला, मुझे एक चीज तो ये मिली, यहाँ पे देखो a is divisible by 5 and b is divisible by 5। अगर दोनों डिविजिबल बाय 5 है तो a और b का कॉमन फैक्टर हो गया ना 5, करेक्ट? तो ये अभी हमें लिखना पड़ेगा कि एज दिस बोथ आर हैविंग, दे बोथ आर डिविजिबल बाय 5, देयर कॉमन फैक्टर इज 5। ओके, सो हम लोग लिखेंगे हेंस, हम लोग लिखेंगे हेंस 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ओके, 10। अगर 5 कॉमन फैक्टर हो गया तो a और b को प्राइम नहीं रहेंगे, क्योंकि को प्राइम के लिए क्या अलग, को प्राइम का मतलब क्या है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ये 5 कॉमन हो गया इसका मतलब क्या है? देयरफॉर a and b are not co-prime numbers, which contradicts, ये contradict वर्ड ये वाले प्रूफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। this contradicts, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, contradicts with our assumption, and therefore root 5 is an irrational number. Okay, so there are basically 6 steps. Okay, you will get 3 marks for this question. Okay, 6 step. First is to make a assumption that let it be a irrational number. Second step, irrational number है तो वो a by b में आएगा ही। a by b क्या है? दे आर को प्राइम, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा स्टेप में क्या करूंगी, मैं बोलूंगी चलो दोनों को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके मुझे एक इक्वेशन मिलना चाहिए। उसमें मैं बोलूंगी कि हाँ, यस, दिस इज व्हाट वेयर वी आर गेटिंग a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो उसका रूट भी डिविजिबल बाय 5 है। तो इसके वजह से क्या हो गया, एक a इज इक्वल टू 5k करके मुझे एक इक्वेशन मिला जिसको मुझे वापस स्क्वायर करना है, जो कि मुझे देगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। बट a स्क्वायर इज ऑल्सो 5b स्क्वायर, तो मैंने सब्सटीट्यूशन किया। यहाँ पे देखो जैसे सब्सटीट्यूशन हुआ, कैंसिलेशन होने के बाद मुझे वापस मिला b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k। इसका मतलब क्या, b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5।
दैट मीन्स b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. दैट मीन्स 5 है, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया. अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो हम लोग कह ही नहीं सकते कि a और b को प्राइम है. हमारा अजम्पशन से ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया. एंड देयरफॉर वी से रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे ये चौथा स्टेप है हमारा. ठीक है, और ये वाला देखो, ये वाला चौथा स्टेप है, ये पांचवा स्टेप है, और ये लास्ट स्टेप है जहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ ये कॉन्ट्राडिक्ट है, कॉन्ट्राडिक्ट विथ अवर अजम्पशन. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so let us start with our next question where we have to prove that 3 plus 2 root 5 is irrational number. Again, contradiction method करना है. Contradiction method मतलब क्या करना है, हमें ये assume करना पड़ेगा कि वो चीज जैसी है वैसी है ही नहीं. तो मैं assume करूंगी let 3 plus 2 root 5 be और रैशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल पूछा है तो इरेशनल का नंबर उल्टा है रैशनल नंबर. तो मैं बोलूंगी लेट इट बी अ इरेशनल नंबर. तो अगर ये इरेशनल नंबर है मतलब 3 plus 2 root 5 कैन बी रिटन एज a by b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम. कोप्राइम का मतलब मैंने पहले क्वेश्चन में बताया क्या है. कोप्राइम नंबर्स वेयर यू डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स. ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना है. देखो ये वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी यू हैव टू अज्यूम दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर. ओके, ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, तो इसमें ज्यादा कुछ प्रूव करना नहीं है. जैसे रूट 5 के लिए प्रूव किया ना स्टेप वाइज, वैसा नहीं करना है. इसमें क्या करना है, इसमें 2 रूट 5 ऐसे ही रखना है. ए बाय बी, ये 3 यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा. दैट मीन्स 2 रूट 5 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा a माइनस 3b बाय b. देयरफॉर योर रूट 5 इज नथिंग बट a माइनस 3b बाय b, और ये 2 नीचे आ जाएगा इसके. ओके, दैट मीन्स वी कैन सी दैट a माइनस 3b बाय 2b इज विच टाइप ऑफ नंबर. ये p by q फॉर्म में है. दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर. बट हमें पता है रूट 5 क्या है, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर. करेक्ट, तो इसका मतलब 2 रूट 5 इरेशनल नंबर है. दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स योर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल. एक साइड है फ्रैक्शन दैट इज अ रैशनल नंबर, एक साइड है इरेशनल नंबर, जो कि हमारा जो अजम्पशन है उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है. दिस शोज दैट this shows that our assumption is incorrect. Okay, and therefore 3 plus 2 root 5 is irrational. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आएगा 2 मार्क के लिए. ओके, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो ये इजी वाले क्वेश्चन है. तो इसमें एक साइड तो आ गया, ये वाला साइड है गया रैशनल नंबर, और ये जो ये वाला साइड है वो हो गया इरेशनल नंबर. दोनों इक्वल नहीं हो सकते ना, तो इसकी वजह से हमारा अजम्पशन क्या है, हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है. इसी की वजह से 3 plus 2 root 5 क्या है, इरेशनल नंबर. ओके, सो लेट अस गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Okay, so now let us start the last sum, question number 3 of exercise 1.2. Okay, which says prove the following numbers are irrational. Okay, we have got different types in this. So let us do the first example where we have to prove 1 by root 2 is irrational number. Okay, so what we do, as we have seen in our previous examples, first is assumption. जो नहीं है वो है. Okay, तो हम लोग बोलेंगे let 1 upon root 2 be rational number. Okay, if it is a rational number, then we can always write this 1 upon root 2 as
A by B, okay, where A and B are co-prime numbers. Okay, so that means, now see, as we have seen in grade 9, if there is a irrational number in denominator, what we do? We rationalize it. How do we rationalize? We multiply by the number, same number. So रूट टू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एक साइड रैशनलाइज कर देंगे. ओके, सो व्हाट वी गेट ओवर हियर, वी गेट रूट टू अपॉन रूट टू इंटू रूट टू, यू विल गेट 2 is equal to a by b. That means root 2 is equal to 2. I'll take it on other side, it will be 2a by b. So here you can see that 2a by b is a rational number, whereas root 2 is a irrational number. That means your left hand side, right hand side are not equal, na? That means our assumption is wrong. Thus, our assumption is wrong. Therefore, 1 upon root 2 is irrational number. This is easy questions, 2 marks questions. So when this question comes for 2 mark, you have to assume, रखना ही है ध्यान में कि रूट टू इरेशनल नंबर है. ओके, और सिंपल अगर कोई नंबर आता है जैसे कि रूट 5 है, रूट 7 है, तो ये क्वेश्चन आपको आएंगे 3 मार्क के लिए. इसको आपको अच्छे से सिस्टमेटिकली प्रूव करना. ठीक है, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वी हैव टू प्रूव दैट 7 रूट 5 is a irrational number. So how we will prove this? Let us start. Okay, so the question is, prove that 7 root 5 is irrational number. So again, we'll start with the assumption, let 7 root 5 be rational number. पहले उसको जो नहीं है उससे चालू करना है अज्यूम करके. तो मैंने अज्यूम किया let it be a rational number. अगर ये rational number है तो हम लोग उसको always किस में एक्सप्रेस कर पाएंगे? a by b में. क्या है a by b? a और b जो है they are co-prime. को-प्राइम नंबर्स मतलब क्या? उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है. तो मैंने इधर रूट 5 को रखना है और 7 नीचे चला जाएगा बिकॉज ये ऊपर है, तो ये 7 भी हो जाएगा. तो अब इधर दिख रहा है मेरा a अपॉन 7 भी क्या है? इज अ रैशनल नंबर. और रूट 5 क्या है? रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर. करेक्ट, ये अभी हम लोग ने प्रूव किया था. This contradicts, or this contradicts with our assumption. Therefore, 7 root 5 is irrational number. Okay? Okay. ओके, तो अभी लास्ट क्वेश्चन करना है जिसमें हमें प्रूव करना है 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर. वापस सेम स्टेप करना है कि पहला अजम्पशन होगा लेट 6 प्लस रूट 2 बी रैशनल नंबर. अगर नंबर रैशनल है तो हम लोग उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी, जहां पे a एंड b आर कोप्राइम. कोप्राइम क्या होता है? जिसमें कुछ भी फैक्टर कॉमन ना हो. ओके, तो अभी इसमें भी क्या करना है? जो इरेशनल नंबर है उसको वैसा ही रखना है, और जो प्लेन नंबर है जैसे कि 6 उसको मैं उधर लेके आऊंगी, -6 हो जाएगा. सॉल्व करूंगी इसको तो ये हो जाएगा a माइनस 6b अपॉन b. ओके, दैट मीन्स a माइनस 6b अपॉन b, ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है. ओके,
और रूट टू क्या है? रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि आवर अजम्पशन इज देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो हमें वो करेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग कर रहे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो क्या है? 6 प्लस रूट टू इज अ irrational number. Okay, so this is it. We are completing this last exercise of our first chapter, and then we will start new chapter in our next upcoming classes. Do this chapter very good. Real numbers, very small and easy chapter. Only some proofs will come, and that too are like very mechanical proofs. Okay, comes for 3 to 2 marks. So do them well. I hope you have understood the first chapter, real number. Meet you soon in our next video with new chapter. Bye.